کہ آپ نے اپنے بچیوں کے لیے اس ادارے کا بچوں کے لیے اس ادارے کا انتخاب کیا، جس کے لیے ہم تمام اساتذہ کرام، تمام ذمہ داران، آپ تمام گارجین حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس لیے کہ کوئی بھی ادارہ گارجین سے نہیں چلتا ہے، گارجین کے ساتھ ساتھ بچوں سے چلتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے اس ادارے کے لیے اپنے بچوں کو دیا ہے، اپنے بچوں کے لیے اس ادارے کا انتخاب کیا ہے، تو اس کے لیے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ نے اس لیے اپنے بچوں کو یہاں دیا ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کے دل کے اندر 2-3 باتیں آئی ہوں گی، جن میں سے ایک بات یہ بھی آئی ہوں گی کہ بھائی یہاں کی تعلیم اچھی ہوگی، یہ بات بھی آئی ہوگی کہ چلو یہاں پہ تربیت اچھی ہو جائے گی، یہ بات بھی آئی ہوگی آپ کے دل میں کہ اب ایسا آپشن ہے ہی نہیں، چاہے تعلیم اچھی ملے نہ ملے، یہ بات بھی آئی ہوگی۔ بہرکیف تو اس پہ تعلیم کیسی ہے، کیا ہے، اس پہ تو ہم لوگ اگلی میٹنگ میں بات، اس لیے کہ ابھی تو ہم نے پڑھانا شروع کیا ہے نا، اس پہ ابھی اگلی میٹنگ میں بات کریں گے، جس میں آپ کی شکایت سنیں گے کہ آپ کے بچے کو کیا آیا اور کیا نہیں آیا، جب ہم لوگ پڑھائی چالو کر لیں گے۔ پہلے ہم نے جو آپ کا شکریہ ادا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک آپ لوگ آمین کہیے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہے نا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر بچے نہ ہوں، سارے لوگ ہوں، تو اس سے کچھ مسئلہ حل نہیں ہو پائے گا۔ حالانکہ نمبر 3 پہ ہے ہمارے یہاں پہ ہاسٹل، لیکن ہم سے سوال کیا گیا ہے تو میں ہاسٹل کا بتا دوں۔ سب لوگوں کو یہ بات اچھے سے معلوم ہے، جو آپ کو بولنا ہے، میرا یہ سوال ہے، یہ ادارہ لڑکیوں کا ہے یا لڑکوں کا ہے؟ لڑکی کا ہے۔ زور سے بولیے بھائی، آپ لوگ بھی بولیے، لڑکیوں کا ہے نا۔ لڑکیوں کا کوئی ہاسٹل نہیں ہے، یہ بھی سب کو معلوم ہے، بات ختم ہو گئی۔ اب لڑکوں کا جو ہاسٹل ہوگا اس کی بات ہم تفصیلی کریں گے آپ سے، جو لوگ اس میں چاہیں گے۔ لڑکیوں کا ادارہ ہے، لڑکیوں کا ہاسٹل ہم نے ابھی کیا نہیں ہے، انشاءاللہ آپ لوگ مدد کریں گے، ہم لوگ بنائیں گے ہاسٹل، یہ ادارہ۔ ابھی جو ہم نے ہاسٹل کیا ہے یہ لڑکوں کے لیے کیا ہے۔ آج تک آپ لوگوں کو جو بل دیا جاتا ہے رسید کاٹ کر کے فیس کی شکل میں، یہ لڑکیوں کے نام سے جامعۃ المحسنات کے نام سے رسید چھپی ہے، لیٹر پیڈ بھی جامعۃ المحسنات کے نام سے چھپا ہوا ہے۔ اس وقت جو میں نے آپ کے میٹنگ میں 3 لائن کا خاکہ لکھا ہے، وہاں بھی ادارہ احاطہ جامعۃ المحسنات لکھا ہوا ہے نا۔ یہاں پہ لڑکوں کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اب یہ کہ لڑکوں کو ہم لوگ لیتے ہیں، لڑکوں کو اس لیے لیتے ہیں کہ آپ کی ہماری محبت میں لیتے ہیں۔ اب ایک بڑی بہن آ رہی ہے، پھر ہمارا چھوٹا بیٹا چلا جائے گا۔ دوسری چیز میرے جو دل کے اندر بات ہے کہ لڑکوں کا ایک مستقل ادارہ چلانے کی میری آرزو آج سے کم 20 سال پہلے سے ہے۔ جس ادارے کے اندر آپ لوگ بیٹھے ہیں یہ بھی 20 سال پہلے سے ہے۔ 2003 کے اندر جب میں پڑھتا تھا، اور اسی اسلام کو جس کو ہم لوگ لڑکھڑیا بھی بولتے ہیں، تو 2003 میں ایک میلاد میں آیا تھا یہاں۔ تو جب میلاد میں یہاں پہ آیا تھا، کس کے گھر تھا یہ سب یاد نہیں، لیکن بہت آگے تھا جب تک ہمارے دادا مرحوم وغیرہ زندہ تھے۔ تو یہاں پہ جو میں نے میلاد کی جو سچویشن دیکھا تھا، کیفیت دیکھی تھی، بے راہ روی دیکھا تھا، اس کے باوجود ہمارا 4 سال پڑھائی باقی تھا۔ اس زمانے میں میرے دل کے اندر یہ بات آئی تھی کہ مدرسہ ہم کو اس لائن میں کھولنا ہے۔ جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہیں اس کے آگے ہماری زمین نہیں ہے، اس کے پیچھے زمین ہے، آگے نہیں ہے، جبکہ اس روڈ پہ ہماری زمین بہت ہے۔ اور پرسا کے لوگ جو باضابطہ وہاں کے لوگ ہیں، وہ اس کے بجائے آج بھی اس روڈ کو لائک کرتے ہیں، لیکن پروسیس تھا کہ بھائی یہاں پہ سارے لوگ باہر سے آ کے رہ رہے ہیں، یہاں پہ جہالت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے میں نے یہاں پر انتظام کیا۔ دوسری بات کہ گاؤں کے لیے تو لوگوں کا تھا یہ مدرسہ ہدایت المسلمین، ہر گاؤں میں کہیں نہ کہیں ایک مکتب ہے، لیکن جب یہاں پر میں آیا تھا اس مدرسے میں آج سے 20-22 سال پہلے اس محلے میں، تو کوئی مکتب کا نظام نہیں تھا۔ کیا فیروز بھائی غلط کہہ رہا ہوں؟ نہ کوئی مکتب کا نظام تھا، نہ کوئی مدرسے کا نظام تھا۔ اللہ نے دل میں بات ڈالی، دھیرے دھیرے وقت آیا کہ میں یہاں پہ مدرسہ بنایا۔ اب مدرسہ کی 2 صورت ہوتی ہے، ایک لڑکوں کا، ایک لڑکیوں کا۔ لڑکوں کا مدرسہ چلانے کے لیے جو ہم لوگ فری پڑھاتے ہیں، ہے نا، جلسہ میں بھی میں نے کہا تھا، لڑکوں کا مدرسہ چلانے کے لیے جہاں ہمارے بچے فری کے پڑھتے ہیں، ہمارے گاؤں میں، سماج میں، علاقے میں اس مدرسے کی کوئی کمی نہیں ہے، جس کے لیے ہم مدرسہ بڑھانا نہیں چاہتے ہیں کہ میں 4 بچہ رکھ لوں اور رسید لے کے آپ سے چندہ مانگنے چلے جائیں کہ بھائی ہم 4 بچہ پڑھا رہے ہیں، آپ چندہ دیجیے۔
ये मिजाज नहीं है। क्यों? अपने गांव इलाके में भी बहुत चल रहा है छोटा बड़का मंजिल का मदरसा सब। जो बड़े मदरसे हैं, खिरमा है, दमला है और बनगौमा है, इस तरीके के बहुत सारे बड़े मदरसे हैं। पीछे चले जाइए तारफिया, संग्राम है। तो जिन बच्चों को माँ बाप, लड़कों को, ये ध्यान में रखिएगा, जो माँ बाप लड़कों को फ्री पढ़ाना चाहते हैं हॉस्टल में, उसके लिए इदारे की कमी नहीं है। अब आइए लड़कियों पर। लड़कियों की तालीम आपको फ्री नहीं होती। अभी आज से 3 साल पहले हमने रैयाम के 2-3 बच्चों को और ख़ुद मैं अपनी बहन को साथ में शामिल किया, जबकि मैंने गार्जियन से मीटिंग किया कि देखिए ऐसे ऐसे खर्चा आ रहा है, अगर आप 4 गार्जियन मिल करके हमको थोड़ा सा फीस बढ़ा दीजिए तो हम एक टीचर बहाल करेंगे, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे और वही टीचर से दूसरे बच्चे भी पढ़ेंगे। लेकिन गार्जियन को शौक होता है कि हमारे बच्चे हॉस्टल में रहें। हॉस्टल को सारे लोग पसंद करते हैं, जबकि हॉस्टल अच्छी चीज़ नहीं है, ये बात याद रखिएगा। फिर दोबारा सुन लीजिए कान खोल करके कि हॉस्टल अच्छी चीज़ नहीं है, चाहे वो लड़का के लिए हो या लड़कियों के लिए हो। जबकि लड़कों का हॉस्टल मैंने भी किया है, लेकिन अगर मैं सही से इसका इंतज़ाम न कर सकूं तो ये बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन ये किसके लिए अच्छी चीज़ नहीं, अब ये भी सुनिए, जिसका माँ बाप सलीकामंद हो उसके लिए अच्छी चीज़ नहीं। जिसका माँ बाप बेनमाजी हो उसके लिए अच्छी चीज़ है कि कम से कम 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा। जिसका माँ बाप झूठ बोलता है उसके लिए अच्छी चीज़ है कि कम से कम आपका बच्चा चुगली नहीं करेगा। लेकिन जिसका माँ बाप नमाजी हो, जिसका माँ बाप सलीकामंद हो, जिसके माँ बाप के घर के अंदर रोज़ाना कुरान करीम की तिलावत होती हो, उस बच्चे के लिए चाहे वो लड़का का हो या लड़कियों का हॉस्टल अच्छी चीज़ नहीं। क्यों? यही माहौल चाहिए जो हमारे घर के अंदर माहौल मौजूद है। हमें क्या ज़रूरत है हॉस्टल में डालने, है ना? तो ये 2 बातें बैठ के अब लड़कियों के मुद्दे पे जो बातें करनी थी कि आज से जब हम 3-4 साल पहले लेकर के गए उन बच्चों को, तो 4000 रुपया एडमिशन फीस लगा। कितना लगा? बोलिए भाई। 4000 रुपया लगा। और मंथली फीस 3000 रुपया लगा। अब खुद अपने लोग को गौर कीजिए कि हम में से कितने गार्जियन हैं जो अपने बच्चों को 4000 रुपया से 4 साल पहले, है ना, 4000 रुपया 4 साल पहले वाली फीस बता, अभी का मालूम नहीं, जो 4000 रुपया हम दाखिला फीस देंगे और कम से कम 3000 रुपया हम लड़कियों को फीस दे करके पढ़ाएंगे। इसमें से कितने हाजिर शामिल हैं? कितने गार्जियन, ये आप बताइए, हाथ उठाइए हमारे सामने। अब अगर शामिल नहीं है तो इसका दूसरा पहलू गौर कीजिए। वही तालीम जो हमारे बच्चों को 4000 रुपये पे और 3000 रुपये का हॉस्टल पे मिल रहा है, आपके बच्चियों को यहाँ पे 300 रुपये में मिल रहा है। क्या गलत बोल रहा हूँ? आप लोगों ने अगर 300 रुपये से ज्यादा फीस दिया तो हमारा कान पकड़ के खड़ा कर दीजिए। कभी दिया है तो बताइए। लेकिन दूसरा पहलू यह है कि इसी 300 रुपया का जो पिछले साल की हमारी मीटिंग हुई थी, इसी 200 रुपये का फीस, कोई फीस अपने यहाँ या तो 300 या 200, इस 300 और 200 रुपये के फीस पे बच्चों के ऊपर 1,85,000 प्लस रुपया बचा था। ये 200 रुपये फीस का और 300 रुपये फीस का बता रहा हूँ। 1,85,000 प्लस रुपये बचे थे, जिसमें से कम 10 गार्जियन ऐसे हैं जिसका हिसाब हमको याद भी नहीं था, और आज तक जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज तक मैंने लिखा भी नहीं है, याद ही नहीं है। इत्तेफाक की बात यह है तो उसमें से भी मैं एक गार्जियन को यहाँ पे पा रहा हूँ, मर्द में से, चाहे तो हम नाम से बता दें, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है ना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। बाहर क्या बहुत सारा फीस उसमें से आया भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन आज भी 1 लाख से ज़्यादा पिछले साल का फीस बाकी है। आज भी 1 लाख रुपए से ज़्यादा पिछले साल का फीस बाकी है बच्चों पर। तो अब हाँ, उनमें से अक्सर बच्चे आते हैं, अब जिसके यहाँ 10,000 8,000 रुपया हुआ, ये सारे बच्चे छोड़ दिए, ये सारे बच्चों ने छोड़ दिया। इसके ऊपर भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे। अच्छा किया, ये सब बल्कि लिखाते रहिए। बाहर क्या, चलिए बीच में हम छोड़ने और पकड़ने की बात बता देते हैं। तकरीबन हमने 250 बच्चों को प्लस दाखिला लिया पिछले साल, जिसमें से दाखिला होते हुए और छोड़ते हुए हमारे पास 199 बच्चे आए। बच्चे जो हमारे आईडी पहन के जाते हैं, हमने जो हिसाब दिया है उस आईडी वाले को,
199 ID का हिसाब दिया और कुल मिलाकर के 108 बल्कि 9 ID का हिसाब दिया, एक गाड़ी वाले जावेद का मिलाकर के 108 9 ID का हिसाब दिया, जिनमें से 199 बच्चों का ID का हिसाब दिया। जब हमारा मदरसा बंद हुआ था उस वक्त तकरीबन हमारे पास 175 से 80 बच्चे हाजिर थे जो दाखिला इम्तिहान सालाना इम्तिहान दे करके छुट्टी हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का शुक्र है और ये मदरसे की बहुत बड़ी कामयाबी है कि उसमें से एक भी बच्चा ऐसा नहीं है, एक भी, कि जिन्होंने सिर्फ इसलिए छोड़ दिया हो कि उसके यहाँ फीस बाकी है। और इस छोड़ने वालों की तादाद 7 या 8 है बस। गोया के छोड़ने वालों की तादाद 7 या 8 है, जबकि हमारा दिल ऐसा है कि यहाँ पे गार्जियन को मैं अपने निगाहों से देख रहा हूँ। गार्जियन ऐसे भी मिले हमको कि जिनके बच्चे की बड़ी ताख़ीर से दाखिला हुआ, उन्होंने कहा कि मैं दाखिला इसलिए नहीं करवा रहा हूँ कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। हमने उन गार्जियन से कहा कि 2 बात है, आपको पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना है कोई मसला नहीं, और अगर पढ़ाना है तो आप दाखिल कराइए। वो गार्जियन है हमारे पास मौजूद, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बताओ। मैंने उस बच्चों को किताब दिया, दाखिला लिया और अब तक उससे 1 रुपया नहीं लिया, 1 सिक्का नहीं लिया। इरफान भाई यहाँ पे गार्जियन मौजूद हैं, वो बच्चे जा चुके हैं इसलिए उसका नाम ले रहे हैं। इसलिए पिछले साल इरफान भाई की तरफ से खबर आई कि ये बच्चा वाकई गरीब है। क्या इरफान भाई? हमने उस बच्चे को ड्रेस दिया, किताब दिया, गाड़ी से बच्चे आते हैं, फ्री गाड़ी किया, वो बच्चे चले गए। क्या ऐसे मौके पे हमें बच्चों को फ्री पढ़ाना चाहिए? पिछले साल 12-14 बच्चों को हमने किताब ड्रेस सब दे करके फ्री मंगवाया कि पढ़ लो भाई। उसमें से सिर्फ 1 बच्ची अभी पढ़ रही है, सिर्फ 1 बच्ची पढ़ रही, बाकी सब चले गए। और याद रखिए, बहुत अच्छे से याद रखिए कि ये जो है ना 100-200 रुपया हमारे पास नहीं, ये एक बहाना है। ये 200 रुपया या 300 रुपया या 500 रुपया ये गरीबों के ही लिए रखा गया है फीस। अमीर के बच्चे तो मैंने कहा 3000 रुपया देकर पढ़ रहा है। अब इस 300 रुपये पे भी मैं क्या डिस्काउंट करूँ आपसे? और जिस रजिस्टर को मैं आपके सामने लेके आया हूँ, ये पिछले साल की रजिस्टर है, नया रजिस्टर नहीं है। इसमें आप देख सकते हैं एक क्लास में अगर हमारे पास 15 बच्चा है तो 7-7 बच्चे फ्री हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो शुरू अव्वले दिन से आज तक फ्री है, आज तक फ्री है। जिसकी आखिरी बात यह है कि अगर कोई बच्चा वाकई पैसे के वजह से ना पढ़ सके तो ये मेरे लिए शर्म की बात है और मेरा जिंदा रहना मुश्किल है। जी, ये अल्लाह जानता है, चाहे आप अल्फाज को जो आप तस्वीर करें आपका मैटर है। लेकिन आज जो बच्चियों का हम फीस ले रहे हैं ये 300 या 200 इतना ही है। ये भी पैसा वक्त पे जमा नहीं हो पा रहा है। हमारे असातिज़ा की तरफ से इससे पहले ये चलता था कि किसी को 2000 दे दिया, किसी को 4000 दे दिया, किसी को 5000 दे दिया। कहीं ना कहीं दबे लफ्जों में या खुले लफ्जों में ये शिकायत आई कि इस पैसे से कुछ होता नहीं है। असातिज़ा ने हमसे ये बातें कही कि आप 1 महीने के बजाय 1.5 महीने पे दीजिए, 2 महीने पे दीजिए, लेकिन हमको एक साथ पैसा चाहिए। हमने इन लोगों से वादा किया और जब से देना शुरू किया मैंने वक्त के ऊपर पैसा दिया और मुकम्मल पैसा दिया। गार्जियन यहाँ मौजूद हैं, मदरसे में छुट्टी हुई, बहुत सारे के यहाँ जो फीस बचा था जो आज तक बचा है। हमारे असातिज़ा से पूछिए कि क्या हमने इसको पैसा नहीं दिया। सिर्फ पैसा ही नहीं दिया बल्कि तनख्वाह के अलावा एडवांस दिया। क्या आप दिल्ली मुंबई मद्रास जा रहे हैं, सिर्फ मर्द को नहीं लेडीज टीचर को दिया कि रमजान है आपके घर पे, जिसने जितना कहा, जिसने 2000 का उसको 2000 दिया, जिसने कहा 5000 रुपया देना उसको 5000 दिया। सिर्फ इस उम्मीद में कि हमारे असातिज़ा जब तक अच्छे होंगे जब तक आपके बच्चे अच्छे होंगे। हमने असातिज़ा को ढिलाई की। कल हम कभी नहीं कह सकते हैं कि मौलाना साहब 6 बज गए, आप 6:05 में क्लास से बाहर, हम नहीं कह सकते हैं या कहेंगे। हम लोग सारे के सारे लोग मजदूर हैं। कोई हमारे अंदर काम करता है, किसी के अंदर हम काम करते हैं। ये दुनिया का दस्तूर है। कोई आदमी ऐसा नहीं जो मजदूर नहीं है। दुनिया का कोई आदमी है ही नहीं जो मजदूर नहीं है।
पंखा को नहीं तो बंद ही कर दे थोड़ी देर के लिए। हमको बाहर क्या तो अब लड़कियों के तालीम का मसला हुआ, हमने 300 रुपया फीस लगाया। अब लड़कियां पढ़ते हुए जो है अलीफ बा से शुरू किया और ये बच्चे अरबी दोम तक पहुंचे हैं। और एक बात बीच में और याद रखिए, अभी बोलते हुए भूल गया तो फिर याद आ गई। जिस बहन को मैंने अपने और जिन लड़कियों को यानी कि बच्ची को रैयाम के हमने 3000 रुपया देकर पूरे साल पढ़ाया, जब वो बच्ची 1 साल के बाद आई तो दोबारा फिर वही पढ़ाई पढ़ी पीछे से, इसका फायदा कुछ नहीं हुआ, ये भी याद रखिएगा। यानी 1 साल की तालीम हमारी बर्बाद गई, दूसरे का छोड़े हमारी बहन। उस 4 बच्ची में से 1 बच्ची यकीनन ज़हन की कमजोर थी और 3 बच्ची ऐसी थी जो यहाँ से लेकर स्कूल में सरकारी स्कूल तक में कभी 2nd डिवीजन नहीं या 1st डिवीजन आई। उस बच्चे को दोबारा पढ़ाना पड़ेगा। अल्लाह ने बच्चों का अलग अलग ज़हन दिया है। अगर हमारे पास 10 बच्चियां हैं तो जिसमें से 7 बच्ची पे तो मेरा दावा है कि ये बच्चियां 100% कामयाब है और 5 बच्ची पे 100% प्लस कामयाबी का दावा है। 3 बच्ची होगी, कमज़ोर भी होगी, लेकिन इंशाल्लाह फेल नहीं होने के लायक। और ये आप भी दुआ करें, इसके लिए आपको भी दुआ करनी पड़ेगी, घर का भी माहौल बताना पड़ेगा। तो बहरकैफ उस 3000 और 4000 रुपये वाले बच्चे को हम कितने में पढ़ा रहे हैं? आपके बच्चों को आप लोग भी बोलिए पीछे से। हमारे उस्ताद थे मौलाना बांदवी रहमतुल्लाह अलैह, जिससे हम लोगों ने अबू दाऊद पढ़ी। तो हमारे क्लास में 1500-1700 बच्चे होते थे एक क्लास में। तो लाइट तो बढ़कर जाती है, तो हमारे असातिज़ा कहते थे कि आवाज़ जा रही है, तो बच्चा सब जोर से कहता है कि नहीं आ रही है। तो कहते इसका मतलब आवाज़ जा रही है। अगर तुम ये नहीं सुनते कि आवाज़ जा रही तो कैसे बोलते? और वो पूरा सबक पढ़ा देते बगैर माइक के, 1500 बच्चों को पूरा सबक पढ़ा देते। और इतने सादा मिजाज से अल्लाह रहम करे कि दारुल उलूम के उस्ताद और ठेला पे भी बैठ के आ जाते हैं, जबकि मदरसा की तरफ से VIP गाड़ी होती है। लेकिन देखा कि 10 मिनट लेट है तो पैदले चल दिया, रिक्शा मिला रिक्शा पे बैठ गया, ठेला मिला ठेला पे बैठ गया। तो शख्सियत ना गाड़ी पे बैठने से भाई बनती है ना बिगड़ती है। शख्सियत तो अल्लाह के यहाँ तकवा इख्तियार की नस्बत है। तो बहरकैफ हम आपके बच्चों को इस फीस पे पढ़ा रहे हैं। अब दूसरी बात जो आपके जहन में आ रही होगी, आप बोल नहीं पा रहे हैं, हम इन लड़कियों के लिए अब खर्चा कहाँ से इकट्ठा करेंगे? तो इसके लिए हम रमज़ान में चंदा करते हैं, है ना? आवाज़ जा रही मेरी? हम रमज़ान में इन बच्चियों के खर्च को पूरा करने के लिए चंदा करते हैं। मैंने आखिरी मीटिंग में, जलसा से पहले वाली मीटिंग में कहा था कि वो बच्चे के वालिदैन जिनका बच्चा यहाँ नहीं है, दिल्ली मुंबई मद्रास का बच्चा नहीं है ना, हमने उन लोगों से जाकर के तो भीख मांगा आपके बच्चों के लिए, ठीक है, इसमें कॉलम है। लेकिन हमारा जो बच्चा जहाँ पढ़ता है उस मदरसे को हमने क्या दिया, ये गौर करना है। भाई आपने रमजान में कुछ पैसा तो खर्च किया होगा ना, यकीनन किया होगा। आपने इस मदरसे को क्या दिया है 4 साल से? आज का मैं सवाल नहीं है, जब से ये मदरसा है, जब से आपके बच्चे हैं, ये जब से सवाल है, आपने क्या दिया? या फिर कि कभी मैं आपके दरवाजे गया? ये कान खोल करके सुन लीजिए, न गया हूं और न जाऊंगा। हाँ बताऊंगा जरूर, बताना काम है मेरा, लेकिन जब दिल के अंदर खुद एहसास नहीं हो, अरे मैं खानदानी आदमी हूँ, बहुत गैरतमंद आदमी हूँ, हाँ बहुत गैरतमंद आदमी हूँ। बहर क्या, आगे के कॉलम पे चलते हैं। आपने अपने बच्चों के लिए इस इदारे का इंतखाब किया, जिसके लिए दोबारा आपका शुक्रिया। नंबर 2, माहाना फीस की तारीख। हम लोग पिछले साल जो मीटिंग किए थे, पिछले साल हमारी मीटिंग 2 फरवरी बरोज़ एतवार को हुई थी, जहाँ पे तमाम गार्जियन ने ये बातें तय की थी कि फीस की अदायगी वक्त पर होगी। क्या पुराने लोगों को मालूम होगा? 5 तारीख है ना? कितनी तारीख तय की गई थी? लास्ट 5 तारीख तय की गई थी। आज हम लोग 8 तारीख पे बैठे हुए हैं, इसलिए आप लोगों को नहीं कहा गया कि एक मीटिंग हो जाए।
अब ये मीटिंग हो गई है, आप लोगों से मैं अदबन ही समझे हाथ जोड़ के गुजारिश करूँगा, 200-300 रुपया ऐसा नहीं है कि किसी के पास नहीं है। आखिर यही लोग जोड़ करके 2000 रुपया हमें देते हैं, 4000 रुपया भी देते हैं, जो पैसा मेरे काम का नहीं आता है। जाहिर सी बात, आपने 2000 दिया, मैं क्या करूँगा उसका? और ऐसा भी नहीं कि फेंक देंगे, फेंकता कोई नहीं है पैसा, लेकिन मेरे काम का नहीं है वो। तो हम लोग पाबंदे अहद रहे इंशाअल्लाह। 1 तारीख से लेकर 4 तारीख तक आपको जो फीस तय है उसका जमा करना है। कितना जमा करना है? 300 रुपया। अब किस क्लास में कौन बच्चे हैं ये मैं बता देता हूँ। आप लोग अपने बच्चे से, अब उसके लिए फिर आपको रजिस्टर लाना पड़ेगा तो और वक्त खिंच जाएगा। जो छोटा बच्चा है जिसको मैंने एक किताब दिया है मोटी वाली, ऐसे समझ ले क्लास के नाम के बगैर, जो 4 साल 5 साल 6 साल का बच्चा है ना छोटा, जिसको मैंने एक किताब दिया है और एक नूरानी कायदा दिया है, उस बच्चों की फीस 200 रुपया है। ठीक है। उसके अलावा जितने बच्चे हैं जिसको मैंने 4-4 किताब दिया है, जिसकी किताब पे ए लिखा हुआ है, जिसके किताब पे बी लिखा हुआ है, जिसकी किताब पे 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा, जो भी आगे चले जाए, इन तमाम बच्चों की फीस 300 रुपया है। ठीक है। जिसको सिर्फ मैंने एक किताब दिया उसकी फीस 200 रुपया। जिसको मैंने अदर किताबें दी हैं ज़्यादा, जिसपे ए बी जैसे बोलते हैं ना, नर्सरी ए, नर्सरी बी, अतफाल अव्वल, अतफाल दोनसों, आगे तक चले जाए, इन बच्चों की फीस 300 रुपया है। अब होता है क्या है नुकसान? एक तो यह है कि वो पैसा मेरे काम का नहीं, दूसरा ये होता है कि मैं यहाँ पे बैठता हूँ पढ़ाने के लिए, अब आप आ गए, मौलवी साहब फीस ले लीजिए, तो पैसा तो आ गया, आपके बच्चों की उस दिन की पढ़ाई चली गई हमारी या नहीं गई? जाएगी या नहीं जाएगी बताइए? इसलिए कि ऐसा भी नहीं कि आप फीस दीजिएगा चले जाइएगा। मैं तो जिम्मेदार हूँ, आपसे 10 मिनट हमको बात करना होता है, आप भी हमसे बात करते हैं 10 मिनट। तो गोया है कि आप अगर कभी भी फीस लेकर आते जिस क्लास का, उस क्लास की तालीम ख़त्म, जो एक हकीकत है। तो ये बात तय हुई कि 1 तारीख से लेकर के 4 तारीख तक आप अपनी मर्जी से जमा करें, और 5 तारीख को हर बच्चे को जमा करना ज़रूरी है। जो बात तय हो गई है, अब इसको दोहराना नहीं है हमें। अब आज 8 तारीख हो गई, आपको आज 8 तारीख जुमेरात का दिन है, 1 जुमा 2 शनिचर 3 इतवार 4, इतवार तक कोशिश करें कि एक बच्चे का फीस जमा हो जाए, ताकि सोमवार को हम अपने उस्ताद को तनख्वाह दे सकें। उनकी तनख्वाह पूरी हो चुकी है, उनकी तनख्वाह पूरी हो चुकी है, यानी 5 तारीख को मदरसा खुला है, 1 से 1 तारीख हम फीस चलाते हैं, 30 तारीख को इन लोगों का महीना लग चुका है, ताकि हम 10 तारीख को दे सकें। 10 तारीख को हमने टाइम रखा है, तो क्या इस पर हम लोग अमल करेंगे इंशाअल्लाह। और उसका तरीका ये होगा कि हम सुबह का जो एक वक्त होगा, जैसे होता है ना सुबह से लेकर नाश्ता तक, बस अब तो हम बच्चों का फीस ही जमा करेंगे, तो एक ही दिन महीने में ख़राब होगा ना, और वो भी आधा वक्त ख़राब होगा, और वो पैसा हमें काम में आएगा। तो सारे लोग ये कोशिश करें, जिसका जमा हो गया वो भी, नहीं जमा हो गया वो भी, इतवार तक जमा हो जाना है इंशाअल्लाह। ठीक है। अब आते हैं हम तीसरे नंबर पर।